We had started talking about these polyatomic ions. इसका मैंने थोड़ा बहुत explanation दी थी कि what are polyatomic ions? They are basically your molecules that end up gaining or losing electrons. So we did some of them, and I told you कि इनको memorize करना, इनको याद रखना है, ठीक है? So you have, and just 1 second, all of them that need to be memorized. Phosphate, then there is ammonium, which is NH4 +1. Okay, no one is going to ask you about the structure, about the detail, how they are formed, but remember the formula. I said then there's there's phosphite, which is PO3 -3. Then you have nitrite, which is NO2 -1. अच्छा फिर और कौन से? There's sulfite, which is SO3. ऊपर लिख लेते हैं. It's SO3 -2. That's sulfite. Then there's HCO3 -1. This is known as hydrogen carbonate or bicarbonate. Also known as bicarbonate. Then you have HSO4 -1, which is hydrogen sulfate. Then you have Cr2O7, and it has a charge of 2-. This is called dichromate 6. Then there's another one, which is magnate 7, MnO4 -1. So this is known as magnate 7. And और कौन सा एक दो और कर लेते हैं. You have Cn -1, which is known as a cyanide ion. Anyway, so this is your your complete exhaustive list of ions that have to be remembered. All of them. And they should be on your fingertips. If you ever hear the word phosphate, you should know, okay, what is phosphate? Phosphate is PO4 -3. Okay, if you hear the word carbonate, you should immediately know that it is COC with a charge of -2. And also remember, ये जो charge है, this is on the entire molecule. It's if you talk about sulfide SO3, if you talk about sulfide, which is SO3 -2, तो ये -2 सिर्फ ऑक्सीजन के ऊपर नहीं, it's one entity, it's one thing. ठीक है? Think of these polyatomic ions as one thing. So you have to remember each one of the polyatomic ions. और क्या क्या याद रखना था कि ये चार्जेस तो वैसे ही पता होने चाहिए थे कि ग्रुप 1, सॉरी, अच्छा, so group 1 was +1, group 2 was +2, group 3 is +3, and 4 is ±4. Group 5 is -3, group 6, any element in group 6 is -2, and group 7 is -1. ठीक है, ये तो हमने सबसे पहले बेसिक्स की थी आयोनिक कंपाउंड्स में. एंड वी डिड क्रिस क्रॉस. फिर मैंने ट्रांजिशन मेटल्स का भी थोड़ा सा बताया था कि ट्रांजिशन मेटल्स का वेरिएबल चार्ज होता है. दैट्स यूजुअली रिटन इन द फॉर्मूला. आयरन 3 ऑक्साइड लिखा होगा तो उसका मतलब है आयरन इज +3. And then you have all these ions whose charges, they must be memorized. You must memorize those charges. तो अब इससे आगे करते हैं कि we're going to write formulas now again. But this time we're going to bring in these polyatomic ions. इसकी जो list है ना, I'm going to take a snapshot and send it on WhatsApp as well, so that you have it as well with you at all times. ठीक है, just 1 second snapshot. ठीक है. So let me send you a snapshot of this. तो WhatsApp से देख लेना, उसके ऊपर इन सारे आयंस की
लिस्ट की स्नैपशॉट मैंने सेंड कर दी है. अच्छा, now this one. We're now going to learn how to write formulas again. So, for example, you have calcium nitrate. So the question is, अच्छा, इस बोर्ड का मैं लिंक भी आपको सेंड कर दूं चैट के अंदर. Just 1 second. Can view. So you can open the board separately. ये मैं इसकी चैट के अंदर अच्छा, so calcium nitrate. How do you come up with the formula of calcium nitrate? Remember, calcium is +2. अच्छा, what is nitrate? Nitrate इसके अंदर देखो जाके, और nitrate यहाँ पे लिखा हुआ है. It's written as, it's given as NO3 minus 1. So this is nitrate. So it's NO3 minus 1. Now remember कि ये जो polyatomic ion है, think of it as one thing. Now you're going to do crisscross. Crisscross में क्या करना है कि ये 1 उठा के इधर लगा दो, ये 2 उठा के इधर लगा दो. So it's going to be calcium would be 1, और nitrate, ये जो polyatomic ion है, इसके ऊपर there must be a bracket drawn on it, और फिर उसके बाद 2 लिखना है. Yes sir, I'm back. ठीक है. अच्छा, हमजा, ये माइनस एंड -1 इज द सेम थिंग. ठीक है, लेट मी राइट -1. इट्स द सेम थिंग. MnO4 के ऊपर भी माइनस लिखा हुआ, मतलब खाली माइनस लिखा हुआ, इसका मतलब है -1 है. ठीक है, ये जितनी भी जगहों पे माइनस लिखा हुआ है ना खाली, दैट सिंपली मींस -1. और उसी तरह प्लस अगर लिखा होगा ना कहीं पे भी, लाइक इफ समबडी मेंशन्स एन ए प्लस, तो मतलब दैट्स अंडरस्टूड कि इट्स +1. ठीक है. अच्छा, सो हसन, हमने हमने पॉलीटॉमिक आयंस की ना पूरी लिस्ट जो है वो लिखी थी. ठीक है, वो मैंने उसके अंदर ग्रुप के अंदर भी भेज दी है. तो अब हम उनके साथ ना फॉर्मूलाज कर रहे हैं. सो कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम इज +2, NO3 इज -1. तो क्रिस क्रॉस करोगे तो नाइट्रेट ट्वाइस हो जाएंगे, तो आप ब्रैकेट में डाल के 2 करोगे एंड ब्रिंग देम क्लोजर टुगेदर. सो कैल्शियम वुड बी 1 लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, 1 इज नॉट इम्पॉर्टेंट. लेकिन क्रिस क्रॉस उसी तरह कर रहे हो, 1 उठा के उधर लगा दो, ये 2 उठा के उधर लगा दो. ठीक है. NO3 शुड बी ट्रीटेड एज वन थिंग, तो उसके ऊपर ब्रैकेट डालना है. इसी तरह अनदर वन, लेट्स से एल्यूमिनियम सल्फेट. सो एल्यूमिनियम सल्फेट वुड बी, क्या फॉर्मूला होगा? एल्यूमिनियम ग्रुप 3 में, एल्यूमिनियम ग्रुप 3 में तो उसका चार्ज क्या होता है? इट्स +3. सल्फेट क्या होता है? सल्फेट, लुक इन द टेबल. सल्फेट यहाँ पे, सल्फाइड और सल्फेट में फर्क याद रखना. ठीक है. सल्फेट इज दिस वन, इट्स SO4 with a charge of -2. So it's SO4 having a charge of -2. Crisscross करो इसका to get the formula. 2 उठा के इधर लगा दो, 3 उठा के उधर लगा दो. So it's going to be एल्यूमिनियम के साथ 2 आएगा, और SO4 कितने होंगे? 3. So put a bracket. Remember to put a bracket around the polyatomic ion. So this is aluminum sulfate. Another one, let's say the next one is ammonium phosphate. Sir? Yes. Sir, if there would be transition metal, what would be done? वो मैं बताता हूँ. इसके बाद एक एग्जाम्पल उसका भी कर लेते हैं. अमोनियम फॉस्फेट पहले. अमोनियम क्या है? ये वाला अमोनियम है. ठीक है, इट्स NH4 +1. फॉस्फेट क्या है? इट्स PO4 -3. ठीक है, फॉस्फेट यहाँ पे ये लिखा हुआ है. ठीक है, ये सारे फिंगर टिप्स पे होने चाहिए. अच्छा, क्रिस क्रॉस करो तो क्या होगा? 3 को उठा के लगा दो, 1 को, यानी इसका मतलब है अमोनियम जो होंगे दे वुड बी 3, तो पुट अ ब्रैकेट अराउंड इट. और फॉस्फेट कितने होंगे? वो एक ही होगा. तो एक को आप मतलब लिखते नहीं हो, मतलब यू डोंट राइट 1. ठीक है, यूजुअली वो एक फॉस्फेट, इट्स ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड कि इट इज 1 फॉस्फेट. एक ट्रांजिशन मेटल वाला भी कर लेते हैं कि
let's say you have transition metal, so you have iron 3 hydroxide. तो ट्रांजिशन मेटल्स में सिर्फ वो चार्ज लिखा होता था, फॉर्मूले के अंदर लिखा होता था। तो इसका मतलब है आयरन इज 3+, और हाइड्रोक्साइड ये ऊपर जाके देख लो, हाइड्रोक्साइड हमने सबसे पहला वाला किया था, इट्स OH with a charge of -1, तो that is what hydroxide is। तो OH with a charge of -1 क्रिस क्रॉस करो तो हाइड्रोक्साइड कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, आयरन कितने होने चाहिए, 1। तो Fe would be 1, जो कि लिखने की जरूरत नहीं है, और हाइड्रोक्साइड कितने होने चाहिए, दे शुड बी 3 ऑफ देम। सो दिस इज FeOH3। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? नूर, इज दिस क्लियर? मिनाहिल, हमजा, हसान, क्लियर है? सर ये सर सर ट्रांजिशन मेटल में लिखा होता है ना हमेशा? हाँ, वो लिखा होगा, वरना तो पता ही नहीं लगेगा कि चार्ज क्या है। अच्छा ठीक है सर। उसके अलावा किसी को और तरीका नहीं है, मतलब कि चार्ज क्या होगा? नहीं, अगर तो फॉर्मूला दिया हुआ है फिर पता कर सकते हो, लेकिन मतलब ये नहीं लिखा होगा, जैसा ये आयरन हाइड्रोक्साइड कभी भी नहीं लिखा होगा। ठीक है, वो अच्छा हमेशा, ठीक है। वरना तो पता ही नहीं लगा सकते कि आयरन के ऊपर 2+ है या 3+ है। ठीक है, ठीक है। दूसरा दूसरा तरीका है कि अगर किसी ने फॉर्मूला बना के दे दिया ना, उससे ढूंढ सकते हो कि उसका चार्ज क्या है। ठीक है, अच्छा, अच्छा, एनीवे, इसका अपोजिट करके। हाँ, मतलब इसको रिवर्स कर दो तो फिर वो चार्ज पता लग जाएगा, मतलब कि ठीक है। OH के ऊपर 3 क्यों है, क्योंकि वो 3 पहले इसके ऊपर होगा। ठीक है, ओके सर। अच्छा, सो ये क्वेश्चंस करो जरा एवरीवन। वो मैंने व्हाट्सएप के ऊपर सेंड भी कर दिया, मैंने लिंक भी भेज दिया बोर्ड का। ट्राई एंड राइट डाउन दीज फॉर्मूलाज, और मैं ग्रुप नंबर्स भी बता रहा हूँ कि किसका क्या नंबर है। ठीक है, फर्स्ट वन, सोडियम सल्फेट। ठीक है, एवरीवन स्टार्ट राइटिंग, और मुझे इसकी पिक्चर सेंड करो व्हाट्सएप पे। सोडियम सल्फेट, सोडियम का सिंबल जो है वो Na है, और वो ग्रुप 1 में होता है। ठीक है, सेकंड इज एल्यूमिनियम कार्बोनेट। सो एल्यूमिनियम इज Al, और ग्रुप 3 में होता है। थर्ड वन इज tin 4 sulfate। tin is Sn। ammonium sulfate, magnesium dichromate, Mg जो है that's in group 2। Number 6, सर yes। सर डू वी हैव टू रिमेंबर दीस कंपाउंड्स लाइक कार्बन एंड सल्फेट जो लिखे हैं? ये जो लिखा हुआ है ना, ये तो याद रखते हैं ना, ये जो स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहे सारे। जी अच्छा। ठीक है, ये तो पूरा का पूरा याद रखना है। ठीक है, इसको मैं ठीक और ये है। फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ये सबसे बेसिक चीजें। कभी भी फॉस्फेट तुम्हारे कहीं लिखा है तो बस ऑटोमेटिकली तुम्हें पता होना चाहिए PO4-3 है। मैग्नेट लिखा है MnO4-1 है, नाइट्राइट लिखा होगा NO2-1 है। ठीक है, ये सारे कंप्लीटली मेमोराइज होने चाहिए। ठीक है सर। अच्छा, सारे ये सॉल्व करो, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस चाहिए, उसी से चीजें मेमोराइज हो जाएंगी। अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम इज बैरियम फॉस्फाइट।
10 पूरे कर लेते हैं. Number 9 is मिनाइल फर्स्ट वाले का क्या सर आंसर है? हाँ जी, यस. नहीं कुछ नहीं, सॉरी सर. तो भाई मैं पूछ रहा हूँ, मिनाइल फर्स्ट वाले का क्या आंसर है? मिनाइल फर्स्ट किया आपने? चैट के अंदर लिख दो बेशक. राफे फर्स्ट, किसी ने फर्स्ट किया? हमजा? Well, it is सर आई हैव डन. Na2SO4. अच्छा, राफे बताओ क्या? Na2SO4. Na2SO4. ठीक है. Na is +1 and SO4 is -2, तो obviously it's Na2 हो जाएगा और SO4 1 है तो उसको बस SO4 लिख दोगे. That's it. तो ठीक है, do the rest. You have 10 minutes for this. So what's an acid? An acid is a molecule, a substance that donates a proton. ठीक है, इसको it's called a proton donor. अच्छा, what's a proton? Proton कहते हैं H+1 ions को. ठीक है, so it's a अच्छा, why is H+1 ions called a proton? क्योंकि H के पास ना H11 होता है, उसके पास it has 1 proton and 1 electron and 0 neutrons. अच्छा, H+1 होगा तो वो इलेक्ट्रॉन भी चला जाएगा, मतलब +1 का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट. तो पीछे रह क्या गया है? सिर्फ एक प्रोटॉन. तो H+1 आयन जो होता है ना, दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 प्रोटॉन, क्योंकि वैसे उसके पास एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन था, बट सिंस इट्स +1 तो वो इलेक्ट्रॉन भी चला गया. अच्छा, सो एन एसिड इज नोन एज अ प्रोटॉन डोनर. यानी एक ऐसा सिंपल वर्ड्स के अंदर, ठीक है, इसकी जो मतलब अगर किसी ने पेपर में पूछा, आपने बस लिखना है एन एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर, दैट्स इट. ये सिंपल वर्ड्स में it's a substance, a molecule that produces H positive ions. तो एक इमेजिन करो, एक मॉलिक्यूल है जो बैठा दूसरों को ना, लेट्स से देयर इज दिस मॉलिक्यूल X, और वो बैठा सारों को ना, जो भी उसके पास से गुजर रहा है ना, उसको H+1 पकड़ाई जा रहा है. ठीक है, सो that is what an acid is. अच्छा, similarly, what's a base? Base is exactly the opposite. A base is known as a proton acceptor. और अभी मैंने बताया था प्रोटॉन क्या होता है. प्रोटॉन H+1 आयन को कहते हैं. सो इट्स अ प्रोटॉन एक्सेप्टर. तो किसी ने भी पूछा ना कि बेस क्या है, आपने कह देना कि इट्स अ प्रोटॉन एक्सेप्टर. दैट इज इट. यानी फिर से इन सिंपल वर्ड्स it's a substance or a molecule that accepts H+1 ions. यानी इसका मतलब है कि लेट्स से एक Y एक बेस है, एक मॉलिक्यूल है,
ठीक है, तो वो दूसरों से ना h+1 के करीब से गुजर रहा है, उसको पकड़ के अपने साथ जोड़ लेता है, उसको एक्सेप्ट करता रहता है। मतलब अगर इर्द गिर्द कहीं h+1 आयंस पड़े हुए हैं ना, तो उनको खींच के अपने साथ जोड़ता रहेगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट एन एसिड एंड अ बेस, दिस इज व्हाट इज मेंट बाय एन एसिड एंड अ बेस। कॉन्सेप्ट क्लियर है? मतलब अभी सिर्फ ये आइडिया हसन क्लियर है? यस सर। Yes, yes. ठीक है हमजा। यस सर। अच्छा, अब खैर क्लास हम ठीक है, अब एक मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वही है, द एसिड्स एंड बेसिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर मॉलिक्यूल्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली ऑन प्लैनेट अर्थ। ठीक है, स्पेशली ऑन प्लैनेट अर्थ, प्रॉब्ली मार्स के ऊपर इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, लेकिन प्लैनेट अर्थ के ऊपर दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अब इसमें खास क्या बात है, मतलब व्हाई डू यू हैव टू स्टडी a molecule that releases H+1 ions and a molecule that accepts H+1 ions in so much detail? ये H+1 में इतनी खास बात है क्या? Why is it so important? बाकी भी तो दुनिया में इतने आयन्स हैं, सोडियम का आयन है, हर चीज का एक आयन बन जाता है। ठीक है, कार्बोनेट आयन है, नाइट्रेट आयन है, उनको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं मिलती है? H+1 को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है? ठीक है, दैट्स अ क्वेश्चन, और उसका आंसर कल मिलेगा, लेकिन बैठ के सोचो। ठीक है, कि दुनिया में इतने आयन्स हैं, तो ये पूरा एक अलग से चैप्टर है, और ये खाली अलग से चैप्टर नहीं है, दिस इज प्रॉब्ली केमिस्ट्री के अंदर इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड इंपॉर्टेंट थिंग्स, कि व्हाई इज H+1 सो स्पेशल कि हमें उसको अलग से पढ़ना पड़ता है, और खास तौर पे प्लैनेट अर्थ के ऊपर इतना स्पेशल क्यों है? ठीक है, ये बैठ के ना कल फिर इसका जवाब मिलेगा। कल याद रखना क्लास होगी, ठीक है, मिस्ड वन क्लास, तो कल इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एसिड और बेसिस तो ठीक मेरे है ख्याल से होपफुली क्लियर है कि क्या होता है, बस ये अब क्लियर करना है कि इतनी खास बात क्या है H+1 के बारे में, कि जिसको आप अलग से पढ़ते हो बैठ के। ठीक है, इसको बैठ के ढूंढना जरा। चलिए ठीक है, सर, सेम टाइम पे। हाँ सेम टाइम, ठीक है। फॉर्मूलाज ठीक। जिन्होंने नहीं सर भेज वो मुझे भेज दें। यस, सर एक काम कर देंगे सर, जितना भी पढ़ा है वो एक पीडीएफ फॉर्म में भेज देंगे। हाँ हाँ, मैं उसको कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है, बोर्ड। सर थैंक यू चलो ठीक है, ओके ओके, देन टेक सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। Classes है। Office sir. केयर।